Hi everyone, welcome to iQuant. I am Yogesh. I hope you are properly attending all these sessions on number system. Okay, today we are here to do everything about factors. This is the ninth session of the playlist, and in this session, I am going to cover everything about factors. Okay, probably if you do this session, you do not need to learn anything extra. Okay, any other concept related to factors because everything is covered here. Fine. So go through it completely, and I also have somewhere around 10-15 questions here. After that, when you watch this session, you have to solve somewhere around 30-40 questions by yourself. Okay, and then things will be clear to you. If you have any doubt, let me know. Also, as I keep saying, there's a WhatsApp group in the description at the top. Do join that group because all the IPMET aspirants are there. Okay, and if you have any queries, you want updates, materials, whatever, you can let us know. Fine. Let's get started. We'll do the concept of factors. So, what do we study in factors exactly? I mean, whenever we have a number and if they are going to ask us any question around factors, they'll mostly ask total number of factors or how many even factors are there of the number, how many odd factors are there, how many prime factors are there, sum of all the factors, product of all the factors and factors that are multiples of a number. So, from this concept, a lot of questions have come in IPMAT as well. Okay, so there are somewhere around 2 questions maybe every year from factors in IPMAT and other entrance exams like maybe CAT or any other management entrance exam. Fine. So, we will go ahead, we will start with the total number of factors. This is easy, I will be going a bit fast, okay. If you want to, rewatch a particular part, just replay it, watch it a couple of times if you are not able to understand. Otherwise, you exactly have to do what I am doing here. Fine. You already know that what are factors, right? So, factors are basically the numbers, some numbers that divide a given number. Suppose I say 10, okay. So, 10 is a number, its factors are 1, 2, 5 and 10, isn't it? What is the smallest factor of 10? It is 1. So, 1 is always the smallest factor of a given number and it is always a factor of a given number. सारे numbers का एक factor तो होता ही है 1, ठीक है? Then 10 is the biggest factor of 10. So, इसका मतलब क्या है? कोई number अगर हमें given है उसका biggest factor क्या होता है? The number itself. Okay? बाकी factors उसके बीच में होते हैं 1 to I mean the highest 1 सबसे छोटा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, उसके बीच में बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं. नाउ सपोज 10 इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, राइट. अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाता है से 10 लाख, आप उसके फैक्टर्स कैसे निकालोगे? उसके फैक्टर्स मैनुअली ऐसे काउंट करना इम्पॉसिबल है. सो दैट इज़ वाई वी लर्न हाउ टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. देयर इज अ ट्रिक, देयर इज अ फॉर्मूला. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट 10, सो एक्चुअली 10 के कितने फैक्टर्स हैं? ऑलरेडी आपको पता ही है कि 1 2 5 10. Where do they come from? See, सबसे पहले अगर आप 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, that is 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1, isn't it? Now every factor of 10 that is there, it will always be in form of every factor of 10 will always be in form of 2 to the power a into 5 to the power b. इसका मतलब क्या है कि 100% 10 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है? 2 and 5. इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से प्राइम्स आते हैं? 2 और 5. सो हर फैक्टर 2 की पावर a इंटू बी की 5 की पावर b के फॉर्म में लिखा जा सकता है. जैसे कि 1 है, 1 को कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0. 2 को कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0. 5 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1. एंड 10 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1. So basically you just have to keep making combinations of powers and then you get all the factors, isn't it? I hope this is also clear. ठीक है? Now if we solve this question and try to find out the total number of factors of a given number, जो कि सबसे पहला concept है, the first step is do the prime factorization of the given number, express it as the product of primes. Obviously we can do that, हमें prime factorization करना है. Write the prime factorization in the exponent form. तो हमेशा exponent form में ही prime factorization करना है. जैसे कि सपोज आपको एक नंबर दे दिया गया है, दैट इज 150. ओके, यूजली हम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं, वेयर वी डिवाइड 150 by 2 फर्स्ट से 75, देन वी डिवाइडेड बाई 3 25, देन 5 5 25 एंड देन 5 राइट. सो हाउ डू यू राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 150 इन एक्सपोनेंट फॉर्म? फर्स्ट प्राइम इज 2 और 2 कितने हैं? एक ही है तो 2 की पावर 1. 3 वी हैव 1 3 सिंगल 3, सो 3 की पावर 1. We have 2 5s, 5 into 5, so 5 square. This is the proper exponent format or we can say prime factorization of a given number. Okay. If you want to factorize faster, suppose आपको 150 का prime factorization थोड़ा fast लिखना है, तो 150 आपको पता है कि इसके end में 0 है, right?
सो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से करोगे तो कितना आएगा 5 इंटू 30. अगेन 30 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 6 इजंट इट. देन 5 इंटू 5 5 स्क्वायर हो गया. 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3. सो 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर. ट्राई टू राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइम्स. ओके, जैसे अभी मेरे पास 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है. ट्राई करो कि आप 2 इंटू 3 इंटू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ प्राइम्स के फॉर्मेट में लिखो. ठीक है, सो दैट इज मोर स्टैंडर्डाइज्ड, आपकी गलतियां कम होंगी. ठीक है, सो डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट इट इन एक्सपोनेंट फॉर्म्स, एड 1 टू ईच ऑफ द एक्सपोनेंट. हर पावर जो आपकी आई है, जैसे अभी 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है आपका, इट वॉज 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर. सो व्हाट आर द एक्सपोनेंट्स हियर, 1 1 एंड 2. एड 1 टू ईच एक्सपोनेंट. तो 1 में ऐड किया 1 तो 1 प्लस 1, 1 में ऐड किया 1 प्लस 1 एंड 2 में ऐड किया तो 2 प्लस 1, एंड दैट बेसिकली गिव्स यू, if you find out the product of these new resultant numbers when you add 1 to the powers, हर power में add 1 किया and we get what, 2 into 2 into 3, that is 12. There are total 12 factors of 150. You can count manually. Okay, so suppose हम छोटा number लेते हैं, say 10. 10 can be written as 2 की power 1 into 5 की power 1. So total number of factors of 10 will be 1 plus 1. हर power में 1 add करके सबको मल्टीप्लाई कर दो. 1 plus 1 into 1 plus 1, that is 2 into 2, that is 4. एंड 10 के 4 फैक्टर्स होते हैं, 1 to 5 10. आई होप दैट इज क्लियर कि कैसे आपको किसी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है. वी हैव सम क्वेश्चंस ओवर हियर, दिस इज वेरी इजी. ओके, 108 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं. सो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 108 दिस इज डिविजिबल बाय 4, सो 4 into 27, राइट. 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, 27 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. मेक श्योर कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आपके जो बेस में नंबर्स हैं, जैसे 2 3, ये हमेशा प्राइम से होने चाहिए. सपोज एक नंबर है, मैं अगर उसको, अच्छा 27 में भी 3 स्क्वायर, ओके, नॉट 3 स्क्वायर, ये 3 क्यूब होगा 27. ठीक है, सपोज आपको एक नंबर मैंने दे दिया, अगर n इक्वल्स टू 25 क्यूब इंटू 10 स्क्वायर इंटू से 343 स्क्वायर, ऐसे करके, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नो, इवन दो दिस इज इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. तो कई बार फैक्टर्स के क्वेश्चन में जबरदस्ती आपको एक नंबर देंगे, उसमें बेस में कुछ नॉन प्राइम्स डाल देंगे, कुछ प्राइम्स डालेंगे, कुछ नॉन प्राइम. आप क्या करोगे जल्दीबाजी में, आप सीधा 3 + 1 2 + 1 2 + 1 करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दोगे, बट दैट इज रॉन्ग. मेक श्योर आपके नीचे जो बेसिस हैं वो सारे नॉन प्राइम होने, मतलब प्राइम होने चाहिए. 25 इज नॉन प्राइम, 10 इज नॉन प्राइम, 343 इज नॉन प्राइम. तो 25 को पहले 5 स्क्वायर लिखोगे, उसकी पावर 3, सो 5 की पावर 6. देन 10 इज 2 into 5 का स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर. 343 is 7 क्यूब, 7 क्यूब का स्क्वायर is 7 की पावर 6. देन यू क्लब ऑल द पावर्स, ओके, ऑफ ईच 2 ईच 5, देन ओनली यू विल गेट द प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड देन उसका एक्सपोनेंट आपको इंक्रीज करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है, 3125 ऑब्वियसली यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, बिकॉज का यूनिट डिजिट 5 है. सो 5 into 625. यू ऑल नो दैट 625 25 का स्क्वायर होता है, सो 5 into 25 स्क्वायर, राइट. एंड 25 स्क्वायर इज एक्चुअली 25 इज 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का स्क्वायर 5 की पावर 4 एंड पावर 1 इज हियर, सो 5 की पावर 5. 5 की पावर 5 अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास है 5 की पावर 5, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? देयर इज ओनली वन सिंगल प्राइम इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है. जो प्राइम की पावर आ रही है 5, इसमें 1 ऐड कर दो, 5 + 1 6. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3125 विल बी 6. सिमिलरली 1025 भी 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 5 2 या 10, देन 0, देन 5. अगेन 205 5 से डिवाइड होगा, सो वो 5 इसके यहाँ से जो निकलेगा 5 into 41, वी कैन राइट 205 एज 5 into 41. 5 into 5 5 स्क्वायर एंड देन 41, राइट, 41 की पावर 1. सो 5 स्क्वायर 41 की पावर 1. तो 5 की पावर है 2 2 + 1, 41 की पावर है 1 1 + 1, 3 into 2 6 6 फैक्टर्स इसके भी होंगे. 1024 को तो आप सीधे सीधे, इट्स अ वेरी फैमिलियर नंबर, 2 की पावर 10 है ये. 2 की पावर 10 के कितने फैक्टर्स होंगे? 10 + 1, दैट विल बी 11. एज ईजी एज दैट. फैक्टर्स इज वन ऑफ द ईजिएस्ट कंसेप्ट इन नंबर्स. ओके, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं डिफिकल्ट. फाइन. इनफैक्ट अभी मैं आपको आईपी मैट के क्वेश्चन दिखाऊंगा पीवाई, क्योंकि आपको लगेगा ओके ईजी है सच में, राइट. लेट्स फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर. सो एज आई टोल्ड यू कि सपोज मेरे पास एक नंबर है, से आई हैव अ नंबर 36. 36 के कितने फैक्टर्स होते हैं वैसे एक्चुअली अगर आप देखोगे? 1 डिवाइड्स 36, 2 एज वेल, 3 एज वेल, 4 एज वेल, 6 भी, 9 भी करता है, देन 12, देन 18, देन 36, राइट. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स होते हैं 36 के. अगर आप 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या आएगा? 9 into 4, दैट इज 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर. तो अगर आप
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे 2 + 1 × 2 + 1 दैट इज 3 × 3 9 फैक्टर्स, राइट। तो 9 फैक्टर्स हैं टोटल इसके। कुछ फैक्टर्स इवन होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऑड। अब हम फैक्टर्स दो ही टाइप के होते हैं, इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। मतलब टाइप ऑफ नंबर के हिसाब से अगर आप देखते हो तो दो ही टाइप के फैक्टर्स होंगे, या तो फैक्टर्स कुछ ऑड होंगे कुछ इवन होंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 2 इज एन इवन फैक्टर, इवन, 4 इज इवन, 6 इज इवन, 12 इज इवन, 18 इवन, 36 इवन, इजंट इट। सो 1 2 3 4 5 6 कैसे फैक्टर्स हैं इसके, इवन फैक्टर्स हैं। तो टोटल फैक्टर्स है 9, टोटल फैक्टर्स कितने हैं 9, 9 में से 6 इवन है तो बचे हुए 3 क्या हो जाएंगे, ऑड, ओके। ये तो मैनुअल प्रोसेस हो गया, बट आप इसको हाउ डू यू डू दिस क्विकली, ओके। सो अगेन पहले तो फैक्टर्स में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। सो हमें पूछा हुआ है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 36, बट व्हाट इज द प्रोसेस, यू हैव टू टेक 2 कॉमन एंड फाइंड फैक्टर्स ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्ट। यानी कि जो भी आपको नंबर दिया है 36, ओके, 36 को आप कैसे लिखोगे, 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा आपका गिवन नंबर का, उसमें से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 2 की पावर 1 × 3 स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट के टोटल फैक्टर्स निकाल दो। वो आपके कैसे फैक्टर्स होंगे, इवन, क्यों, बिकॉज एक 2 बाहर कॉमन ले लिया था, ये 2 इंश्योर क्या करेगा, जो अंदर वाला पार्ट है इसके जो भी फैक्टर्स आएंगे, जैसे अंदर वाला जो पार्ट है इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 2 की पावर 1 × 3 स्क्वायर के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 2 देन 3 देन 6, राइट। देन व्हाट एल्स कैन बी देयर, 18, यस और नो। और कोई फैक्टर हो सकता है, देखो इसका 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, अच्छा 9 भी हो सकता है, इजंट इट, ठीक है। सो अंदर वाले पार्ट के इतने फैक्टर्स हैं, कुछ इवन हैं कुछ ऑड भी हैं, बट बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर दैट सारे के सारे फैक्टर्स इवन होने चाहिए, ये 2 एक बाहर वेट कर रहा है, ये सारे के सारे फैक्टर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, एंड व्हेन समथिंग इज मल्टीप्लाइड विद 2 ऑल ऑफ देम विल बिकम इवन, एंड दैट इज द रीजन कि हम एक 2 को बाहर लेते हैं, बिकॉज इवन होने के लिए एटलीस्ट एक 2 होना चाहिए किसी भी नंबर के अंदर। तो उस एटलीस्ट एक 2 को प्लांट करने के लिए हर एक नंबर के अंदर हमने किया 2 को कॉमन ले लिया, राइट। सो 2 कॉमन लो प्राइम फैक्टराइजेशन से, रेस्ट ऑफ द पार्ट के नंबर निकाल दो, फैक्टर्स निकाल दो, यू गेट द इवन फैक्टर्स, ओके, दैट्स इट, एज इजी एज दैट। यू कैन ट्राई इट ऑन वेरियस नंबर्स 108 244, इन पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 360। अब ऑड फैक्टर्स, हमें ऑड फैक्टर्स निकालने। ऑड में, ऑड की सबसे स्पेशल बात क्या होती है कि ऑड में कोई भी इवन पार्ट नहीं होना चाहिए, एंड इवन पार्ट नहीं होना चाहिए दैट मीन्स 2 का कुछ भी पार्ट नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो ट्रेस ऑफ 2 इन अ नंबर इफ इट हैज टू बी ऑड, ओके। सो ऑड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, बट कहाँ से, प्राइम फैक्टराइजेशन में से। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, रिमूव कंप्लीट 2 की पावर n वाला पार्ट फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फाइंड फैक्टर्स ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्ट। सो फर्स्ट 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 360 is divisible by 10 obviously, so 10 into 36, 10 can be written as 2 into 5, 36 can be written as 2 square into 3 square. So what is the prime factorization, 2 cube into 3 square into 5। इसमें से, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में से 2 वाला पार्ट पूरा हटा दो, बिकॉज 2 होगा तो कुछ इवन बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी या कुछ चांसेस रहेंगे। 2 को कंप्लीटली हटा दोगे तो आपके पास सिर्फ ऑड वाला पार्ट बचेगा। ऑड वाला पार्ट क्या बच रहा है आपके पास, 3 स्क्वायर into 5। ऑड नंबर के हमेशा ऑड ही फैक्टर्स होते हैं, किसी भी ऑड नंबर के इवन फैक्टर्स कभी नहीं होते हैं। आप अगर कोई भी ऑड नंबर ले लो, 3 9 5 मे बी 19, कोई भी आप ऑड नंबर ले लो, उसके हमेशा ऑड फैक्टर्स ही होंगे। तो ये भी ऑड है, हमारे पास ऑड पार्ट बच रहा है, यानी कि ऑड पार्ट के नंबर्स फैक्टर्स निकालो। अब कितना हो जाएगा, पावर 2 है, सो 2 + 1 एंड 5 की पावर 1 है तो 1 + 1, दैट गिव्स यू 3 into 2 6। देयर आर टोटल 6 व्हाट ऑड फैक्टर्स ऑफ 360, ठीक है, दैट्स इट। अगर आपको अब यहाँ पे अगर आपसे इवन निकालने बोलता तो आप क्या कर सकते थे, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन में से 2 कॉमन लेके रेस्ट ऑफ द पार्ट का निकाल दो, या फिर 360 के टोटल फैक्टर्स निकालो, टोटल फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स माइनस कर दो, तो भी आपको इवन फैक्टर्स मिल जाएंगे, isn't it? यानी कि किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स, ओके, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये हमेशा याद रखना कि किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। लेट्स गो अहेड, विल टॉक अबाउट फाइंडिंग द सम ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, सम ऑफ फैक्टर्स से पहले एक कंसेप्ट और है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। दिस वी हैव डन, दिस इज डन, दिस इज डन। प्राइम फैक्टर्स का देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। तो सपोज
360 इज योर नंबर. ओके, वी कैन डू इट हियर ओनली. प्राइम फैक्टर सबसे इजी वाला पार्ट है. 360 का भी हमने प्राइम फैक्टरेशन किया था, कितना था? आई थिंक इट वाज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, राइट? 45 इंटू 8 इज 360. ओके, आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं. ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन में जो बेसिस होते हैं, ये 2, 3, 5, यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बेसिस. आपको बेस में कितने प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं? 2, 3, 5, तो यानी कि 3 प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे. 3 प्राइम फैक्टर्स हैं 360 के. तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टरेशन करो, बेस में कितने नंबर है उनको काउंट करो, दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स. सम ऑफ फैक्टर्स भी बहुत आसान है, ठीक है. अगर कोई नंबर दिया है n और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, तो n का प्राइम फैक्टराइजेशन इसने बस एग्जांपल के लिए लिया हो कि a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z है, जहाँ पे a b c प्राइम फैक्टर्स हैं. अब और भी हो सकता है, आई मीन देयर कैन बी सो मेनी प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, राइट? मतलब और भी हो सकता है d की पावर समथिंग ऐसे. मतलब यू बेसिकली हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर. ओके, बेस में आपके प्राइम ही होंगे, ऑब्वियसली a b c प्राइम होंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है. तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n इज गिवन बाय, यू सी अ ब्रैकेट एंड व्हाट डज द ब्रैकेट हैव? a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 टिल a की पावर x. यानी कि a की पावर 0 से a की पावर x तक आपको सम निकालना है. क्यों? बिकॉज आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में a की पावर x था, तो आप a की पावर 0 से शुरू करोगे और a की पावर x तक जाओगे और सारे नंबर्स को ऐड कर दोगे a की पावर 0 से a की पावर x तक. अब ये क्या है? ये एक GP है. ये एक GP है जिसका कॉमन रेशियो क्या है? a. तो आपको क्या निकालना है? इस GP का सम, इजंट इट? वैसे ये आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 टिल b की पावर अवेलेबल क्या है? y. तो दूसरा ब्रैकेट ये आ गया और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये भी एक GP है, इसमें कॉमन रेशियो क्या है? b, राइट? एंड देन अनदर GP इज देयर. तीसरा प्राइम, तीसरे प्राइम के लिए हम c की पावर 0 शुरू करेंगे और c की पावर z तक सम निकालेंगे, जिसका रेशियो कॉमन क्या है आपका? c. अब आप देखो ये ऐसा हुआ क्यों? काफ़ी लोग पूछोगे ऐसा हुआ क्यों. तो सपोज अगर मैं 10 का 10 एक छोटे नंबर पे इसको अप्लाई करता हूँ. 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 5, राइट? आप मुझे बताइए कि 2 की पावर क्या है? 1. 5 की पावर क्या है? 1. 2 की पावर क्या क्या हो सकती है उसके फैक्टर्स के अंदर? पहले 10 के फैक्टर्स लिखो. 10 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 5, 10. 1 इज बेसिकली 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0. 2 is basically 2 की पावर 1 into 5 की पावर 0. 5 is basically 2 की पावर 0 into 5 की पावर 1 and 10 is 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1. यानी कि हो क्या रहा है? देखो, every factor is of form 2 की पावर something into 5 की पावर something, isn't it? So basically in this format, if I write the total number, I mean sum of factors of 10, what will it be? पहला प्राइम क्या है? 2, उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1. तो हम 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 को ऐड कर देंगे. यस और नो? ब्रैकेट क्लोज करेंगे. दूसरा प्राइम 5, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1. दिस आई एम डूइंग फॉर नंबर 10 टू मेक यू अंडरस्टैंड. बड़े नंबर से डील करने से अच्छा है छोटे नंबर पर अप्लाई कर लो. व्हाट डू यू एक्चुअली गेट? 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, विच इज दिस. देन 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, ये रहा. 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, ये रहा. एंड फाइनली 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, जो कि ये रहा. एंड सब क्योंकि प्लस 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 पे चल रहे हैं तो एक्चुअली इनका सम हो जाएगा. तो बेसिकली इसी चीज को इन्होंने कंसोलिडेट करके इसके फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे समझना, ठीक है. अब ये GP, आप GP का सम लगाइए और यू कैन सिंपली फाइंड आउट द टोटल सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, राइट. सो ये एक GP है जिसमें फर्स्ट टर्म है आपका, GP में फर्स्ट टर्म होता है, इजंट इट? तो फर्स्ट टर्म GP का है 1, बिकॉज a की पावर 0 1 होता है. रेशियो यहाँ पर है a, ठीक है. तो व्हाट इज द, और ये एक इंक्रीजिंग GP होगी बिकॉज आप 1 कर रहे हो फिर a पे जा रहे हो, एक प्राइम नंबर तो 1 से बड़ा नंबर फिर a स्क्वायर, तो इंक्रीजिंग GP है. व्हाट इज द सम ऑफ इंक्रीजिंग GP? सम ऑफ इंक्रीजिंग GP इज, अगर फर्स्ट टर्म a है सो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. यस और नो? जैसे GP होती क्या एक्चुअली? a ar स्क्वायर, ऐसे करते करते nth टर्म ऑफ अ GP, जो nth टर्म होता है GP का, वो क्या होता है? ar की पावर n माइनस 1. सो नाउ कैन आई राइट दिस a फर्स्ट टर्म एज ar की पावर 0, ठीक है.
तो ये कितने टर्म्स हैं जीपी के अंदर, देखो कितने टर्म्स हैं, 0 से लेके आप n-1 तक जा रहे हो। ऑब्वियसली आप ए आर की पावर 0 से ए आर की पावर n-1 तक जा रहे हो, तो आर की पावर 0 से आर की पावर n-1 तक जाने में कितने टर्म्स होते हैं? इट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जिसमें पावर 0 थी प्लस 1, इजंट इट? सो देयर आर n टर्म्स। ऑब्वियसली मतलब अगर आप 0 से लेकर के n-1 तक काउंटिंग करोगे तो n टर्म्स होते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर के आप x तक जा रहे हो, 0 से लेके x तक जा रहे हो, x-1 तक नहीं जा रहे हो, याद रखना, ठीक है? सो ये आपका बेसिकली 0 से लेकर के आप a की पावर x तक जा रहे हो, तो आप जब सम निकालोगे यहाँ पे आपके टर्म्स कितने हो जाएंगे, x+1। देखो बिकॉज 1 से लेके x तक हो गए x टर्म्स और एक्स्ट्रा एक टर्म है तो x+1, यस और नो? सो ये आ जाएगा आपका a। व्हाट इज a? मतलब फर्स्ट टर्म क्या है आपके जीपी का 1 इंटू रेशियो क्या है a की पावर x+1, यस और नो? a की पावर x+1 -1 अपॉन a-1, ये एक जीपी है, उसका सम मैंने लिख दिया, यानी कि a की पावर 0 से a की पावर x तक का जो सम आएगा वो ये आएगा, ठीक है? a क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 था तो 1 रख दिया। रेशियो क्या है हमारा a, बिकॉज एवरी अदर टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद a, सो a। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, 1 से लेके x तक x टर्म्स हैं, एक a की पावर 0 भी है तो x+1, सो x+1 लिख दिया, टोटल पावर -1 अपॉन ये फॉर्मूला लगा दिया। वैसे ही आप b का क्या लिख सकते हो, सम 1 इंटू, बिकॉज फर्स्ट टर्म इसका भी 1 है, रेशियो b है, सो 1 ब्रैकेट b की पावर y+1 -1 अपॉन b-1। सिमिलरली फॉर c एज वेल। जिससे हमें सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 लिखना है, लेट्स डू इट। 100 can be written as 2 square into 5 square. So what is the sum of factors? It will be 2 की पावर 0 plus 2 की पावर 1 plus 2 की पावर 2, हो गया, क्लोज द ब्रैकेट। 5 का भी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इसको तो आप मैनुअली भी सीधा कैलकुलेट करके लिख सकते हो, अदरवाइज अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। दिस इज ऑल्सो ईजी बिकॉज एक सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज, राइट डाउन द गिवन नंबर एंड उसकी पावर आपको क्या करनी है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2। जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 144 निकालेंगे तो सबसे पहले आपका नंबर क्या है, नंबर आपका 144 है, बट उसके टोटल फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 144 क्या होता है, 12 स्क्वायर, इजंट इट? 12 क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 उसका स्क्वायर, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। What is the total number of factors of 144? It will be 4 plus 1 into 2 plus 1. That is 5 into 3, 15. तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑल फैक्टर्स ऑफ 144, नंबर की पावर, नंबर क्या है 144, इसकी पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या जाएगा, रूट ऑफ 144 की पावर 15। रूट ऑफ 144 इज 12, 12 की पावर 15। दैट विल बी योर आंसर। ओके, आई होप ये सबको क्लियर है। एज इजी एज दैट, किसी और नंबर पे भी आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। बट अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 640, ये तो बहुत ही आसान है ना? ऑल फैक्टर्स ऑफ 640, 640 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये ऑब्वियसली 10 से आएगा तो 10 इंटू 64, 10 होता है 2 इंटू 5 एंड 64 होता है 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 इंटू 5। व्हाट आर द पावर, 7 एंड 1, सो 7 प्लस 1 इंटू 1 plus 1, that gives you 8 into 2, 16. There are total 16 factors of 640. Sum of all of factors, okay, all of the factors of 640, fine. I hope this is clear, ठीक है? बट अगर आपसे एक क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा पूछ देता, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, लो ऑड फैक्टर्स ऑफ 640, तो अगेन आप 640 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते, isn't it? That is 2 की पावर 7, 128 into 5, so 5 की पावर 1. This is the prime factorization of 640. Okay? इसके ऑड फैक्टर्स का सम निकालो कह रहा है, तो ऑड फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 की पावर 7 यानी कि ऑड पार्ट को हटा देते हैं। नाउ वी हैव जस्ट 5 की पावर 1, सो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 5 प्लस 1 दैट इज 6। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। व्हाट इफ द क्वेश्चन आस्क्स यू sum of all even factors of 640, इसको करना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो 640 सबसे पहले क्या होता है, 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 1। देखो आप क्योंकि सब इवन चाहते हो तो आप हमेशा चाहोगे कि 2 हमेशा रहे, ठीक है? और 2 हमेशा रहे
यानी कि 2 की पावर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप करोगे क्या, 2 को मतलब आपको इवन पार्ट हमेशा इंश्योर करना है, ठीक है। तो 2 वाला जो पार्ट है ये ऑड कब देगा, जब 2 की पावर 0 हो जाएगी, बिकॉज 2 की पावर 0 1 होता है। इसीलिए आप क्या करोगे, हमेशा स्टार्ट करोगे 2 की ऐसी पावर से जो इसको इवन रखे, इस पार्ट को, दैट विल बी 2 की पावर 0, ओके। दैट विल बी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसा करते करते 2 की पावर 7 तक का सम निकालोगे आप। ये पूरा का पूरा कैसा है आपका, इवन। हर नंबर 2 का मल्टीपल है तो इवन ही सम देगा। इस इवन से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, ऑड इवन एनीथिंग डज नॉट मैटर, तो आप ऑड वाले पार्ट को पूरा पूरा ले सकते हो, ले सकते हो, बताओ। क्योंकि ये इवन पार्ट है, इस 5 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेगा तब भी इवन बनाएगा, इस 5 को मल्टीप्लाई करेगा तब भी इवन बनाएगा। नाउ यू कैन फाइंड आउट योर आंसर। तो याद रखना, इवन फैक्टर्स का सम निकालते वक्त आपको बस 2 की पावर वाला जो ब्रैकेट होता है उसमें से 2 की पावर 0 को हटा देना। क्यों, क्योंकि गलती से यहाँ पर अगर 2 की पावर 0 आ गया तो वो 2 की पावर 0 5 की पावर 0 के साथ जाएगा और इवन नंबर प्रोड्यूस करके दिक्कत कर देगा, इजंट इट। बिकॉज अगर यहाँ पे 2 की पावर 0 वाला ब्रैकेट आ गया तो क्या हो जाएगा, वो ये 2 की पावर 0 5 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्रोड्यूस हो जाएगा, विच विल अल्टीमेटली गिव यू एन ऑड नंबर। बट हम काम किस पे कर रहे थे, इवन फैक्टर्स पे। तो यानी कि ऑड फैक्टर प्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए। ऑड फैक्टर ना प्रोड्यूस हो, इसको करने के लिए हम 2 की पावर 0 को एलिमिनेट कर देते हैं। बिकॉज अगर यहाँ 2 की पावर 0 होता तो 2 की पावर 0 पक्का 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होता। 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इज 5 अगेन एक ऑड फैक्टर है जो कि प्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालोगे। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6। ये आईबी मैट का पीवाईक्यू है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 6 बोला उसने, बोला कि ऐसे फैक्टर निकालो जो मल्टीपल ऑफ 6 है। अभी तक जब मैं आपको इवन फैक्टर्स निकालने का कंसेप्ट बता रहा था तो हम क्या कर रहे थे, टू फाइंड आउट इवन फैक्टर्स वी टेक 2 कॉमन एंड देन वी फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्ट। सो यानी कि 2 का फैक्टर्स निकालना या फिर इवन फैक्टर्स निकालना एक तरीके से क्या होता है, वो सारे फैक्टर्स निकालना जो 2 का मल्टीपल है, इजंट इट। फाइंडिंग इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स इज बेसिकली फाइंडिंग all the factors that are multiple of 2. So when we find out all the factors that are multiple of 2, we take 2 common outside. ऐसी अगर multiple of 6, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो multiple of 6 हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे बाहर, किससे, 1800 से, तो बचेगा अंदर कितना, 300। अब आपको बस इस पार्ट के फैक्टर्स निकालने हैं और 300 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 100 फर्स्ट एंड देन 3 इंटू 100 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। हाउ मेनी फैक्टर्स विल बी देयर ऑफ 300, 3 की पावर है 1 सो 1 प्लस 1, 2 की पावर है 2 सो 2 प्लस 1 एंड 5 की पावर है 2 सो 2 प्लस 1, दैट गिव्स यू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट गिव्स यू 18। सो देर आर 18 what फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6। ऑब्वियसली हर नंबर जो अंदर आएगा वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 का मल्टीपल बन जाएगा, दैट्स इट। ये आईबी मैट का क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहा था, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3 की पावर 5, 5 की पावर 8, 7 स्क्वायर दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईबीएम में पहले आ चुका है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन। ये एक आपके पास नंबर है, इसके आपको क्या निकालने हैं, दोज फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स की पावर हमेशा क्या होती है, 2 के मल्टीपल में होती है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर की पावर या तो 0 होनी चाहिए या 2 या 4 6 8 ऐसे करके। क्या ये प्राइम फैक्टरेशन दिया है आपको, पहले ही चेक कर लेना। ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपको प्राइम फैक्टरेशन फंसाया जाता है। क्या बेस में सारे प्राइम है, 3 5 7, यस प्राइम फैक्टरेशन है ये। आप मुझे बताइए कि इसके कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे। ऑब्वियसली 3 की पावर 0 यानी कि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 3 की पावर 0 काउंट करेंगे। 3 की पावर 2 होगा तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करेगा। 3 की पावर 4 होगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करेगा। 3 की पावर 4 से आगे हम 3 की पावर 6 पे नहीं जा सकते बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ 3 अवेलेबल इज 5। सो 3 केसेस तो यहाँ बने। साथ में 5 की पावर 8 के कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। ऑब्वियसली 5 की पावर 0, 5 की पावर 2 होगा तब भी चलेगा, 5 की पावर 4 भी, 6 भी और 8 भी। इससे आगे हम नहीं जा सकते बिकॉज 5 की पावर 8 मैक्सिमम है। सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ना, देखो पावर इवन है, यस। 7 स्क्वायर के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 7 की पावर 0 और 7 स्क्वायर, बस। यानी कि आपको वो केसेस लेने हैं हर प्राइम की जिसमें पावर परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 3 केसेस बने, यहाँ 1 2 3 4 5 केसेस बने, यहाँ पे 2 केसेस बने। 3 इंटू 5 इंटू 2 इज 15 इंटू 2 दैट इज 30। 30 ऐसे क्या है फैक्टर्स हैं इस नंबर के जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, दैट्स इट। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे परफेक्ट क्यूब पूछ लेता, ठीक है, उस केस में आप क्या करते हैं,
क्यूब क्या होते हैं? जो कि 3 का मल्टीपल होते हैं, यस और नो? सो 3 की पावर क्या क्या हो सकती है कि वो क्यूब बन सकते? 3 की पावर 0 बिकॉज 1 एक क्यूब होता है, 3 क्यूब भी, 3 की क्यूब के आगे 3 की पावर 6 होगा, वहाँ नहीं जा सकते। 5 की पावर 0, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6, उससे आगे आप नहीं जा सकते। 7 की पावर आप सिर्फ एक 0 ही ले सकते हो बिकॉज 7 क्यूब नहीं ले सकते, अवेलेबल नहीं है 7 की इतनी पावर। 2 केसेस यहाँ, 3 केसेस यहाँ, 1 केस यहाँ, दैट मीन्स 6 ऐसे फैक्टर्स होंगे इसके जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे। बिकॉज आप देखो इन दोनों का आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, जैसे आप 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब करोगे, 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब इज ऑल्सो परफेक्ट क्यूब, यस और नो? आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 6, 5 की पावर 3, 7 की पावर 4 आर ऑड नंबर्स? ये तो बहुत ही आसान है। ऑड नंबर्स यानी कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? ऑड पार्ट, इवन पार्ट पूरा हटा दो, सिर्फ ऑड पार्ट से काम करो। दैट इज 5 की पावर है 3, 3 प्लस 1, 7 की पावर है 4, सो 4 प्लस 1, यानी कि ऑड पार्ट के फैक्टर्स निकालो, दैट इज 4 इंटू 5, दैट इज 20। 20 इज द आंसर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये आपसे इवन पूछता तो आप क्या करते? एक 2 कॉमन लेते, 2 के अंदर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचता है उसके फैक्टर्स निकाल देते, तो आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 120? यानी कि इस नंबर में से आपको 120 कॉमन लेकर के रेस्ट ऑफ द पार्ट के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल उसका रेप्लिका है, 6 के मल्टीपल कितने होंगे इसके फैक्टर्स वाले क्वेश्चन का, राइट? उसमें हमने 6 कॉमन लिया था, यहाँ 120 कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, देखो ये तो प्राइम है 2, 3 भी प्राइम है, 5 भी, लेकिन 10 प्राइम नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जल्दी जल्दी पावर ऐड कर देते हैं, मतलब वट एवर। सो प्रॉपर नीचे प्राइम्स होनी चाहिए बेस में। 2 की पावर 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 की पावर 6 है, 5 की पावर 4 है, बट 10 की पावर 5 है। 10 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5 की पावर 5, 2 इंटू 5 की पावर 5 मतलब 2 की पावर भी 5 आएगा, एक एक्स्ट्रा 5 की पावर 5 आएगा। नाउ 2 की पावर नेट इज 7 प्लस 5 12, 3 की पावर तो कुछ 3 6 ही रहेगी, 5 की पावर 9 हो जाएगी। दिस इज द एक्चुअल प्राइम फैक्टराइजेशन जिस पर हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन इससे आपको क्या हटाना है? इससे क्या कॉमन लेना है? 120। 120 क्या होता है? 4 इंटू 30 और यू कैन से 8 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, यस और नो? यानी कि इससे आपको 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 कॉमन लेना है। सो आप लो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, अगर आप इससे कॉमन ले सकते हो तो आपने बाहर एक 120 ले आया, मतलब 120 इंश्योर कर लिया। अब अंदर कोई भी फैक्टर आएगा इस पार्ट का, रेस्ट ऑफ द पार्ट का, वो 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 120 बन जाएगा। 2 क्यूब बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचेगा? 2 की पावर 9। 3 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 3 की पावर 5 बचेगा। एक 5 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 5 की पावर 8 बचेगा। अब इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं इस पार्ट के। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1, देन 3 की पावर 5 है सो 5 प्लस 1, एंड देन 5 की पावर 8 है तो 8 प्लस 1, दैट गिव्स यू 10 इंटू 6 इंटू 9, दैट इज 540 आंसर। आई होप इट इज क्लियर। कुछ डिफिकल्ट नहीं है वैसे क्वेश्चन आपके लिए, इजंट इट? लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस अ गिवन नंबर 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, मतलब वही क्वेश्चन है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर इवन नंबर्स? इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या आया था अभी? 2 की पावर 12, 5 की पावर 12, यस और नो? बिकॉज 5 की पावर 5 है, 7 की पावर 6, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर okay, so this will be the prime factorization of this number, yes or no? 2 की पावर 12, 5 की पावर 12, 7 की पावर 6। इवन नंबर्स कितने फैक्टर होंगे, यानी कि इवन फैक्टर कितने हैं? 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा? 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 6। अब इस पार्ट के आप फैक्टर्स निकाल दो तो क्या हो जाएगा? इसके कुछ भी फैक्टर हो, 2 से डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके हमेशा इवन नंबर जनरेट करेगा। सो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 11 प्लस 1, 12 प्लस 1, 6 प्लस 1, मल्टीप्लाई करिए एंड फाइंड आउट द आंसर। ओके, इस सारा टाइम भी नहीं लगना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन क्या है? द नंबर्स a, b, c and d have 16, 28, 22 and 27 factors. Which of these could be a perfect cube? 4 नंबर है a, b, c, d। आपको ये नहीं बताया कि वो नंबर्स क्या हैं, बस ये बताया कि उनके फैक्टर्स क्या हैं। a के 16 फैक्टर्स हैं, b के 28, c के 22 एंड d के 27 फैक्टर्स हैं। विच ऑफ दीज कुड बी अ परफेक्ट क्यूब? इसमें से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं? आप मुझे बताइए कि एक परफेक्ट क्यूब जो होता है उसके फैक्टर्स मतलब उसकी पावर क्या होती है? 3 का मल्टीपल होगी, यस और नो? किसी भी परफेक्ट क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा दिखेगा, है ना? x की पावर क्यूब जहाँ पे x प्राइम है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो 3 का मल्टीपल होगा, x की पावर 3 यानी कि हर
परफेक्ट क्यूब में क्या होगा, एक प्राइम होगा नीचे, आप इसको बेटर तरीके से ऐसे लिख लो, एक प्राइम होना चाहिए नीचे और उसकी पावर क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सो 3y मैंने 3 का मल्टीपल दिखाने के लिए, ऐसे ही प्राइम फैक्टरेशन होता है। आप इसके साथ प्राइम 1 प्राइम 2 ऐसे अटैच कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि 1000 भी एक परफेक्ट क्यूब है, क्यों, क्योंकि 1000 को लिख सकते हो 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, है ना, बिकॉज आप इसको कॉमन लेके 2 इंटू 5 का क्यूब लिख सकते हो। बट हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6 भी एक परफेक्ट क्यूब होगा ऑब्वियसली, राइट। बट बेसिक हमें जो आइडिया है कि भाई कम से कम अगर कोई एक परफेक्ट क्यूब है कोई पर्टिकुलर नंबर, तो उसमें एक प्राइम होगा बेस में और उसकी पावर क्या होगी, 3 का मल्टीपल। यानी कि ये जो सारे नंबर्स हैं इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तुम्हें दिए हैं, तो ये फैक्टर्स, ये तो टोटल नंबर, ये तो पावर हो गई उस आपके क्यूब की, इसके फैक्टर्स कितने आएंगे, अगर पावर 3 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली फैक्टर्स क्या होंगे, 3 का सम मल्टीपल प्लस 1, इजंट इट, इस फॉर्म के होने चाहिए, 3 का सम मल्टीपल प्लस 1 फॉर्म के, बिकॉज आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हो, पावर में 1 ऐड करते हो। क्या ये 3y प्लस 1 फॉर्मेट का है, यस। 16 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 प्लस 1। क्या 28 3y प्लस 1 फॉर्मेट का, यस। 28 को लिख सकते हो 3 इंटू 9 प्लस 1। क्या 22 3y प्लस 1 फॉर्मेट का, यस। आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 7 प्लस 1। 27 3y प्लस 1 फॉर्मेट का है, नो, क्योंकि 27 को आप सीधा 3 इंटू 9 लिखोगे तो 27 खत्म हो गया, यहाँ पे 0। यानी कि किसके फुल चांसेस हैं कि वो एक परफेक्ट क्यूब हो सकता है, ये, बिकॉज इसके फैक्टर्स 3y प्लस 1 फॉर्मेट के हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यस और नो। सो ए बी सी मेरे 3 नंबर्स हैं विच कुड बी अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, कुड भी बोला है उनसे, ठीक है, बट ये नहीं हो सकता, किसी के 27 फैक्टर्स हैं तो भाई वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड क्वेश्चन। इफ अ 3 डिजिट नंबर ABC हैज 3 फैक्टर्स, कभी भी किसी नंबर के 3 फैक्टर्स कब होते हैं, सोचो, 3 फैक्टर्स निकालने के लिए 3 फैक्टर कैसे आए होंगे, जब टोटल पावर में 1 ऐड हुआ होगा, यस और नो। टोटल पावर में 1 ऐड होगा तभी तो 3 फैक्टर्स आएंगे। फैक्टर्स कब आते हैं, जब आप पावर में 1 ऐड करते हो। तो डेफिनेटली आप क्या कह सकते हो कि एक नंबर जिसके 3 फैक्टर्स होंगे वो हमेशा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, राइट, परफेक्ट स्क्वायर होगा वो नंबर। दिस इज 100% श्योर, राइट। यानी कि किसी नंबर के अगर 3 फैक्टर्स है तो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ABC एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर हो गया। हाउ मेनी फैक्टर्स डज द 6 डिजिट नंबर ABC हैव। अब भाई ABC से आपको मतलब आपको दिया था कि ABC के 3 फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको किसके फैक्टर निकालने हैं, ABC। तो अगर आप ABC को एक्चुअली ABC से डिवाइड करते हो तो आपका आएगा कितना, 1001, यस और नो। So ABC can be written as ABC into 1001. You can try with any number 1, 2, 3, 123 लो, A को 1, B को 2, C को 3, 123 को 1001 से मल्टीप्लाई करो, you'll get 123, राइट। यानी कि ये हमारे नंबर का क्या है, फैक्टराइजेशन एक तरीके से ABC का। 1001 फर्दर किस किस से डिवाइड होता है, क्या ये 7 से डिवाइड होता है, 1001 मैंने आपको पहले बताया था, इसीलिए जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे। So 7 1 जा 7 30 बचेगा, 7 5 20 30, yes. How can you write it? ABC into 1001 7 से हो रहा है और into 143. तो further we can write ABC can be written as, because हम किसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ABC का, it can finally be written as ABC into 7 into 143 11 into 13. Done. एक्चुअली में यही मेरा ABC का प्राइम फैक्टराइजेशन है, हो गया। अब ABC क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 फैक्टर्स है तो ABC एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट इफ आई लुक एट द ऑप्शंस 16 फैक्टर्स, 24 फैक्टर्स, 16 और 24 फैक्टर्स एंड 20 फैक्टर्स। अब आपको क्या दिख रहा है, एक और वाला ऑप्शन है, यानी कि 16 24 फैक्टर्स क्यों लिखा है फिर, ABC एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर होगा जो 3 डिजिट्स का है। एक 3 डिजिट्स का परफेक्ट स्क्वायर निकालो। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसा होना चाहिए, नीचे प्राइम उसकी पावर 2, तो किसका स्क्वायर ले सकते हो, 3 डिजिट, ओके, 3 डिजिट का स्क्वायर। तो 3 डिजिट के कोई भी स्क्वायर ले लो आप, मे बी अगर आप ऐसे ले लो 17 ले लो, ठीक है, किसको, ABC को 17 स्क्वायर। तो ABC एक प्राइम का स्क्वायर होना चाहिए ना, परफेक्ट स्क्वायर। तो ABC 17 स्क्वायर भी हो सकता है, बट उस केस में क्या होगा, 17 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 एक नंबर जनरेट होगा।
बट अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई ABC 13 का ही स्क्वायर है, सपोज मैं ऐसा बोल देता हूँ कि ABC अगर क्या है 13 का स्क्वायर, उस केस में क्या हो जाएगा, ABC में एक 13 आ जाएगा, मतलब 13 आ जाएगा और 13 एक यहाँ भी पड़ा हुआ है, तो इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अलग आने के चांसेस हैं। तो अगर मैं अपना ABC कैसा लेता हूँ, सपोज आई टेक माई ABC एज व्हाट, आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट, ओके, आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट एंड सपोज इफ आई टेल यू कि मैं ABC को ले रहा हूँ 17 स्क्वायर, लिख दिया मैंने ABC को 17 स्क्वायर, यस और नो, इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इस केस में कितने फैक्टर्स आएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 24 फैक्टर्स आएंगे, नहीं आएंगे। बट अगर ABC एक ऐसा नंबर निकला जो कि पहले से ऑलरेडी जो प्राइम्स यहाँ पर थे 7, 11, 13, इनकी पावर्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब उस केस में कुछ अलग फैक्टर्स आएंगे। बिकॉज अगर मैं ABC को 13 स्क्वायर रख देता हूँ, तो ABC को अगर मैं से 13 स्क्वायर रख देता हूँ तो कितना आ जाएगा प्राइम फैक्टर्स में, 13 क्यूब, सो 13 का क्यूब इंटू 7 इंटू 11। अब आप बताओ कितने फैक्टर्स होंगे, 4 इंटू 2 इंटू 2, इस केस में आपके 16 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यानी कि अगर ABC का ऐसा नंबर निकला जो इनके साथ प्राइम फैक्टर शेयर कर रहा है, तो पावर अलग हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी इनकी, है ना। अदरवाइज अगर ABC एक ऐसा स्क्वायर है जो कि उसके साथ कोई प्राइम फैक्टर शेयर नहीं कर रहा है, जैसे 17 स्क्वायर, तो उस केस में आपके 24 फैक्टर्स हैं। तो 16 फैक्टर्स भी हो सकते हैं और 24 भी हो सकते हैं। दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गुड क्वेश्चन, फाइन। लेट्स टॉक अबाउट दिस, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच डिवाइड 1890, 130, 170 एंड आर नॉट डिविजिबल बाय 45। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स ही छुपा हुआ है। पहले तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने, पॉजिटिव इंटीजर्स फैक्टर्स की बात कर रहा है जो कि इसको डिवाइड करते हैं, बट किससे डिविजिबल नहीं है 45 से। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 1890 को कैसे लिख सकते हो, 189 इंटू 10, 189 9 से डिवाइड होता है तो 9 इंटू 21 इंटू 10, एंड फाइनली 9 में 3 स्क्वायर है और 21 में एक 3 है, सो 3 क्यूब इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, यस और नो, ये इससे आया। दूसरा 130 है, 130 क्या होता है 2 इंटू 65, और 65 क्या होता है 5 इंटू 13, सो 2 इंटू 5 इंटू 13। 170 क्या होता है 2 इंटू 85, 85 इज 5 इंटू 17, सो 2 इंटू 5 इंटू 17। व्हाट इज द एक्चुअल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, इट विल बी 2 की पावर 1 2 3, सो 2 क्यूब, 3 की पावर 3 ओनली 3, 5 की पावर 1 1 1, 5 क्यूब, 7 की पावर 7 इकलौता है तो 7, 3 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, 5 का काम हो गया, 13 और 17, ये सुनो। आपको क्या दिख रहा है, आपको एक नंबर दिख रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। आपको ऐसे फैक्टर निकालने जो 45 से डिविजिबल ना होते हो, यानी कि आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो 45 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं इसके टोटल फैक्टर्स में से, फ्रॉम टोटल फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, इफ आई सब्ट्रैक्ट those factors which are multiple of 45, तो what will we remain with, टोटल फैक्टर्स में से अगर ऐसे मल्टीपल माइनस कर दिए जाएं जो 45 के फैक्टर्स हैं, तो बचेंगे क्या, ऐसे फैक्टर्स जो 45 के मल्टीपल नहीं है, और 45 का मल्टीपल नहीं होगा तो 45 से डिवाइड भी नहीं होगा। तो टोटल फैक्टर्स निकालो, 3 पावर है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 64 इंटू 8, दैट इज 512, यस और नो। ये आपके टोटल फैक्टर्स आ गए। ऑब्वियसली आई मीन ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 64 इंटू 8 दैट इज 64 इंटू 8, यस दिस इज 512, राइट। आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो 45 का मल्टीपल हैं, तो आपको एक 45 लेना पड़ेगा बाहर। 45 क्या होता है 5 इंटू 9, यानी कि 5 इंटू 3 स्क्वायर, ले लिया बाहर कॉमन। अब अंदर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचेगा वो क्या रहेगा, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब में से 3 स्क्वायर तो बाहर आ गया तो एक 3 रहेगा, 5 क्यूब में से एक 5 यहाँ है तो 5 स्क्वायर इंटू 7 13 और 17। दीज, अगर आप इस पार्ट के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे, दीज आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 45, बिकॉज 45 ये बाहर कॉमन है, राइट। सो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 8 24 into 8, that is how much, 192 something, yes 192। तो क्या मिलेगा आपको
512 में से 192 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 320। 320 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 45 का मल्टीपल नहीं है। इतने 45 का मल्टीपल हैं, टोटल फैक्टर्स 512 हैं। टोटल फैक्टर्स में से ऐसे फैक्टर्स माइनस कर दोगे जो 45 का मल्टीपल हैं, तो वो बचेंगे जो 45 का मल्टीपल नहीं है, एंड दोज वोंट बी डिविजिबल बाय 45। दैट्स इट। आईपी मैट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। व्हाट इज दिस? The probability, not a probability question at all, okay? The probability that a randomly chosen positive divisor of 10 की power 2023 is an integer multiple of this. वो कह रहा है कि अगर क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम कोई पॉजिटिव डिवाइजर यानी कि फैक्टर ले लें 10 की पावर 2023 का, वो इसका मल्टीपल हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 2023 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 5 की पावर 2023 सॉरी, ओके, इंटू 2 की पावर 2023, okay? How many total factors are there? 2024 into 2024 यानी कि 2024 का स्क्वायर। This is the total factors of that number. उस नंबर के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं बोल रहा है वो, ऐसे कितने डिवाइजर और फैक्टर एक सेम चीज होती है। ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 10 की पावर 2023 के जो कि किसका मल्टीपल होंगे, 10 की पावर 2001 का। सो अगर आप 10 की पावर 2001 बाहर कॉमन ले लोगे, क्योंकि मल्टीपल की बात आती है फैक्टर से, तो सीधा बाहर उसको कॉमन ले लो जिसका मल्टीपल देखना है। ओके, तो बचेगा कितना, हमारे पास टोटल नंबर कितना है 10 की पावर 2023, तो बचेगा कितना 10 की पावर 22 बचेगा अंदर, इजंट इट? यस और नो? तो 2001 के कितने मल्टीपल्स आ जाएंगे? अब ये देखो अंदर वाले पार्ट का फैक्टर्स निकालना, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा 5 की पावर 22 इंटू 2 की पावर 22। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके क्या आएंगे 23 इंटू 23, दैट मीन्स 23 स्क्वायर। सो देर आर दीज मेनी नंबर्स विच आर फैक्टर्स ऑफ दिस, एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आपसे क्या पूछा है कि अगर हम रैंडमली कोई एक फैक्टर या डिवाइजर इसका निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2001 10 की पावर 2001 का मल्टीपल होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज योर फेवरेबल चांसेस, जो केसेस आपके फेवर में है अपॉन टोटल केसेस, यस और नो? दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी, यही होती है प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल चांसेस, आपके फेवर में कितने सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसका मल्टीपल हो सकते हैं, दैट इज 23 स्क्वायर। एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच यू आर चूजिंग फ्रॉम 2024 स्क्वायर। इज देयर एनी सच ऑप्शन 23 स्क्वायर अपॉन 2024 स्क्वायर? दिस इज द वन, दैट्स योर आंसर। इजी क्वेश्चन है, फैक्टर्स पे बेस्ड है, कुछ नहीं करना था, खाली प्रोबेबिलिटी लगा दिया आगे ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्कैरी फील करें। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन। व्हाट अबाउट दिस? इफ अ 3 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल नीदर बाय 3 नॉर बाय 4? ओके, अब ये लगाया प्रोबेबिलिटी खाली ऐसी है, कुछ फायदा नहीं है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे बस एक फॉर्मूला यूज होगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, दैट इज की फेवरेबल अपॉन टोटल। 3 डिजिट नंबर को चूज कर रहे हैं रैंडम। अब आप बताइए 3 डिजिट नंबर जो है वो कहाँ से शुरू होता है, वो 100 से, और कहाँ तक जाते हैं, दे गो टिल 999, यस और नो? तो टोटल नंबर अंडर कंसिडरेशन कितने हैं, क्योंकि ये एक एपी है जिसका डिफरेंस 1 है। अगर आपके पास एक एपी है जिसका डिफरेंस 1 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। सो 899 प्लस 1 इज 900। वी हैव टोटल 900 नंबर्स अंडर कंसिडरेशन। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि इन 900 नंबर्स में से कितने ऐसे नंबर होंगे जो ना ही 3 से डिवाइड होंगे ना ही 4 से, ना 3 से डिवाइड होने चाहिए ना 4 से। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इफ़ यू नो लिटिल बिट अबाउट वेन डायग्राम्स, थोड़ा सा अगर जिसको वेन डायग्राम पता है आप वेन डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, जिसमें आप क्या करोगे, यूनियन और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाओगे। अब वो ना ही 3 से डिवाइड होने चाहिए ना ही 4 से, ठीक है। तो व्हाट कैन यू डू हियर, आपको पता है कि फर्स्ट नंबर कौन सा है, अगर आप डिविजिबल बाय 3 देखते हो, पहला ऐसा कौन सा नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, 100 से शुरू करें तो 100 होगा, नहीं 101 नो, 102 होगा, अगला 105, ऐसा करते करते लास्ट नंबर कौन सा है जो 3 से डिवाइड होगा, 999। वैसे ही आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 4 कितने नंबर है, तो फर्स्ट नंबर विल बी 100, नेक्स्ट विल बी 104, ऐसे ही 4 के गैप पे, वट विल बी लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 999। 999 की जस्ट बात क्या होता है, 1000 4 से डिवाइड होता है तो उससे जस्ट 4 पहले 996 इज द नंबर डिविजिबल बाय 4। अब ऐसे कुछ नंबर्स होंगे
जो 3 से भी डिवाइड होते हैं 4 से भी। अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो किससे डिवाइड होगा? ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 3 इंटू 4 दैट इज 12। 12 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन सा है इसमें? 12 9 जा 108 है ना, फिर 120। ऐसा करते करते कौन सा नंबर लास्ट होगा जो 12 से डिवाइड होगा? सी विल 996 भी डिविजिबल बाय 12? 12 8 जा 96 एंड 36 बचेगा। यस, तो लास्ट नंबर ऐसा होगा 996। अब आपने क्या किया, सारे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं वो काउंट कर लिए, सारे नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं वो काउंट कर लिए। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे इनमें जो 3 से भी डिवाइड होते हैं 4 से भी, तो डबल काउंट हो गए होंगे इस सीरीज में भी इस सीरीज में भी, उनको आपको एक बार हटाना पड़ेगा कि डबल काउंट नहीं कर सकते। तो वो नंबर्स कौन से होंगे? ये, इनको हटा दो। सो यानी कि हम टोटल नंबर्स पहले यहाँ निकालेंगे, टोटल यहाँ निकालेंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे। टोटल नंबर डिविजिबल बाय 3, एक AP है, लास्ट टर्म है 999। सो n इज इक्वल टू a प्लस n-1 और डिफरेंस कितना है 3। ये कितना आ जाएगा आपका 897 इक्वल्स टू 3 इंटू n-1। n-1 विल बी व्हाट? 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, n will be 300. There are 300 such numbers which are divisible by 3. ठीक है, divisible by 4 निकालते हैं। लास्ट नंबर इज 996, an इज इक्वल टू a कितना है 100 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस है 4 का, इस सीरीज में डिफरेंस है 4 का। सो दिस विल बी 896 इक्वल टू 4n-1, n-1 कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 एंड 24, राइट। n कितना हो जाएगा 225, राइट। सो 225 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होंगे, 12 से डिवाइड होने वाले। ऑब्वियसली इफ आई जस्ट सॉल्व ओवर हियर देन an लास्ट टर्म क्या है 996, ये 12 का निकाल रहा हूँ। a पहला टर्म 108 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितना है 12 का। सो अगर इसको करते तो कितना आएगा ये 896 minus 8 will be 888 equal to 12 times n-1. So 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, 12 4 जा 48, 74 plus 1 75, n आ जाएगा 75। There are 75 such numbers जो कि क्या हो रहे हैं 12 से डिवाइड हो रहे हैं, बट इन 12 वालों को ऑलरेडी हम यहाँ काउंट कर चुके हैं बिकॉज कुछ नंबर ऐसे कॉमन होंगे। देखो जैसे आप 4 के आगे जाओगे ना 104 के आगे तो 108 आ जाएगा, 3 में आप 105 के आगे 3 जाओगे तो 108, तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा, एक बार हटाना पड़ेगा। तो वो सारे नंबर्स जो कॉमन है वो यहाँ आ रहे हैं, इनको एक बार हटा दो। तो टोटल ऐसे यूनिक नंबर्स कितने आ जाएंगे इफ आई सॉल्व दिस पार्ट हियर नाउ। ओके, सो व्हाट कैन वी डू? सो बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग दैट यहाँ पे कोई और शॉर्टकट हो सकता था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक वे पॉसिबल। ओके, सो टोटल सच नंबर्स विच आर डिविजिबल ईदर बाई 3 और बाई 4 वो निकाल रहा हूँ मैं। ईदर दीज आर डिविजिबल बाई 3 और 4। ओके, तो 3 से डिवाइड होने वाले इतने, फिर 4 से डिवाइड होने वाले इतने, बट इसमें से 75 ऐसे होंगे जो 2 बार काउंट हो गए थे। यहाँ पे जैसे 108 का एग्जांपल दिया मैंने 2 बार, उनको एक ही बार काउंट करना है, इसलिए उन 75 नंबर का एक बार उनको हटा देंगे। सो कितना आ जाएगा 300 प्लस ये आ जाएगा 150, दैट गिव्स यू 450। 450 ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाई 3 और 4 होते हैं, या तो 3 से डिवाइड होते हैं या 4 से या 12 से, राइट। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो ना 3 से डिवाइड होते हैं ना 4 से। तो टोटल नंबर्स अंडर कंसिडरेशन कितने थे 900 से 450 ऐसे नंबर्स हैं जो या तो 3 से डिवाइड होंगे या तो 4 से। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 3 से भी ना होते हो 4 से भी नहीं। तो टोटल नंबर्स अंडर कंसिडरेशन में से आप 450 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 900 में से आप 450 माइनस कर दो, वो नंबर्स आ जाएंगे जो ना ही 3 से डिवाइड होते होंगे ना 4 से। और बिकॉज आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल नंबर अंडर कंसिडरेशन वाज 900। 450 by 900 is basically 1/2. 1/2 is my answer. That's it. इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं फैक्टर्स के। आपको प्राइम फैक्टरेशन करना आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कब कॉमन लेना है, ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ट्राई सम क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक्स दैट यू हैव। ओके, एंड iQuanta का एक फ्री क्विज वाला पेज है, फ्री मटेरियल पेज मैं नीचे लगा दूंगा, उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, जस्ट इन केस यू वांट टू अटेम्प्ट देम यू कैन डू। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अराउंड दिस सेशन लेट मी नो। शायद कुछ लोगों को डाउट्स आ सकते हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है फैक्टर्स कैलकुलेट करते वक्त। ओके, सो दैट्स इट, एंड लेट मी नो कि अगर किसी और टॉपिक पे आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।